आज के वीडियो में एक ऐसी गलती के बारे में हम बात करेंगे जो हम में से अक्सर सब लोगों ने किया होगा, इंक्लूडिंग मी एट द स्टार्ट ऑफ आवर करियर। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT दिल्ली एंड ISB हैदराबाद ग्रैड एंड इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ फ्रॉम द लास्ट 10 years। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन कंसल्टिंग, केस स्टडीज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इनमें से कुछ भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एक बहुत ही बड़ा डिबेट चला है आजकल कि स्टार्ट ऑफ द करियर में पैसे पे फोकस करें या स्किल्स पे। एंड बहुत ही रिसेंटली मैंने ये एक पोल में भी डाला था, अपने लिंक्डइन में भी, अपने यूट्यूब में भी। कुछ लोगों ने बोला पैसा, कुछ लोगों ने बोला स्किल्स। बट यू नो व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग वाज सम पीपल वर सो स्ट्रॉन्ग अबाउट बिलीविंग दैट दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल द मनी इन द वर्ल्ड irrespective of whether they have the right skill sets or not. And that is a problem. I mean, of course, companies are making a lot of money. They should pay interns and pay everyone well. Keeping all of these things aside, when you say that you should only focus on money without even thinking about the skill sets that you are developing, very short-term mindset that you are taking into account. जबकि करियर के स्टार्ट में तो हमें और भी ज़्यादा long-term mindset रखना चाहिए। अच्छे companies will always pay you for an internship or for any kind of job. The better the company, the better the branding, maybe they'll pay you higher salaries as well. But not every one of us will end up in those positions. If some of us are lucky enough to get a job which pays us great as well as equips us with the skill sets that we want to, then of course we have just hit the jackpot and that's great. But हम में से सबको वो नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तब आप किस चीज़ पे फोकस करें? तब क्या आप अपने आप को फेलियर माने कि आपको वो हाई पेइंग जॉब नहीं मिला जो आपके दोस्तों को मिला, या आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट को बदले एंड थोड़ा टाइम और एनर्जी और पैसा भी शायद इन्वेस्ट करें स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मनी इज़ ऑलवेज एन आउटकम। मतलब पैसे की ना एक बहुत ही बेसिक सा फिलॉसफी है दैट यू डोंट रन आफ्टर मनी, यू रन आफ्टर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द अदर पर्सन एंड देन यू गेट मनी इन रिटर्न एज एन आउटकम। द बेटर वैल्यू you are able to provide to the person, the less competition there is, the more money you will be able to earn for yourself. तो मुझे लगता है कि here are 3 very important reasons why you should focus on skill sets at the start of your career, especially at the start of your career. Number 1, and ये बहुत ही obvious होना चाहिए कि at the start of the career you need to take the long term view. आपके पास, मान लीजिए आप 25 साल में कमाना शुरू करते हैं, आपके पास at least 40 years of career है ahead, and this is the time when you need to figure out for yourself what is the right career for you. For example, if you choose a field like finance, जो कि बहुत लोग करते हैं, you know, just because there's a lot of money in that field. मैंने भी किया था, मैंने भी finance choose किया था because I thought there's a lot of money in it. Eventually, if you realize that this is not what you want to do in the long run, then 10 years from now, you will just feel very drained and dissatisfied. Maybe you will have a lot of money, but you will not be able to sustain that lifestyle for a longer period of time. And उस stage में to change to something else is going to be much more difficult than to explore and find out the right thing for you at the start, like the पहले के 5-6 साल में ही. Secondly, start of your career is more for you to invest in yourself to develop the right skill sets and the right differentiating skill sets as well, so that 5 to 10 years down the line you can become an expert in a specific skill or in a specific field, and तब आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं. So that's why I'm talking about the long term view. अगर शुरुआत में आप पैसे पे फोकस करेंगे तो मे बी इन द लॉन्ग रन आपको हमेशा मीडियोकर पैसे ही मिलेंगे, बट शुरुआत में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे स्किल्स पे तो लॉन्गर रन में आपको जितना पैसा मिलेगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंपेरेबल टू एनीथिंग एल्स. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ऑब्वियसली जो हाई पेइंग जॉब्स होती है वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन उस फील्ड में हमेशा रहेगा. बजाय कि आप अगर कोई ऐसे लो कंपटीशन फील्ड चूज करें और उसमें एक्सपर्ट बन जाए, तो मे बी 10 years डाउन द लेन
आपके पीयर्स बहुत कम होंगे एंड तब आपके पास बहुत ही हैवी बार्गेनिंग पावर होगी टू चार्ज अ मच हायर प्राइस for your skill sets. So because of the rarity of the skill set, money will follow you in abundance. Third reason is start of the career में ना आपके पास बहुत ज़्यादा flexibility होती है. आप एक तो फ्रेशर होते हैं तो आपके पास आप किसी भी फील्ड में घुसेंगे उसमें आपको एज अ फ्रेशर घुस के आपको नए नए स्किल सेट्स सीखने को मिलेगा. आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है वो भी काफ़ी कम होते हैं. So this is the time when you can really make use of the opportunity and explore different fields and invest in yourself, invest in skill sets. बजाय कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे अभी भागते रहे, पैसे के पीछे तो आपको तब भागना चाहिए जब आप थोड़े से बड़े हो जाए, जब आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाए एंड तब आपके पास एक सॉलिड स्किल सेट भी हो जिसको लेवरेज मान के आप एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं. सो व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू? नंबर 1, यू कैन डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. ये मत सोचो एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर वेदर यू आर गेटिंग पेड और नॉट. अच्छी कंपनी आपको ऑब्वियसली हमेशा पे करेगी बट ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा शुरुआत में ही उस अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप आपको मिल जाए. अगर नहीं मिलता है, बी वेरी ओपन टू अनपेड इंटर्नशिप्स. सीधी सी बात है, कंपनी अगर बेकार भी है, आपको अपना काम निकलवाना है कंपनी से. कंपनी भी तो आपसे अपना काम ही निकलवा रही है, तो आपको भी अपना काम निकलवाना है, आपको वो स्किल सेट्स गेन करना है एंड आगे बढ़ जाना है. This will give you a huge competitive advantage compared to your peers. Secondly, explore a lot of things, explore a lot of different career options, different skill sets. You will get to know a lot about yourself and you will understand your interests a lot better and then you can decide, pick and choose कि किस में आपको इंटरेस्ट है, किस में आपको लग रहा है कि आप लॉन्ग हॉल में रह सकते हैं, you know. Then you can sort of invest in those skill sets specifically. And lastly, learn a lot of skill sets as well. आजकल तो इतना आसान हो गया है skill sets learn करना. There are so many online courses etc. So use that opportunity. You know the best part about living in today's era is number 1 of course skill sets gain करना बहुत आसान हो गया है एंड कई बार तो आप फ्री में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. जस्ट फॉर एग्जांपल जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैंने फ्रॉम स्क्रैच सिर्फ यूट्यूब से सीखा था विदाउट इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग. But it will also get a lot easier if you just invest like 500 rupees on Coursera or Udemy type के courses. There are also so many amazing success stories out there on the internet for you to consume जो आपको assure कर सकता है कि हर skill set में आप पैसे कमा सकते हैं. When I started, like internet was very rare, okay? तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या पॉसिबल है एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस, मी एंड माई peers, chose the safe fields, which is not the case anymore. And lastly, the biggest benefit today is also that कॉलेज, आपने कॉलेज डिग्री किसी में भी किया हो, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ आपके पास एक्चुअली स्किल सेट्स क्या है. तो आपने कॉमर्स में कॉलेज करके आप बिजनेस में मूव हो सकते हैं या प्रोडक्ट मैनेजमेंट या टेक में मूव हो सकते हैं, वाइस वर्सा. तो इफ़ एनीथिंग आजकल के ज़माने में तो स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी फ्रेशर और यंग प्रोफेशनल कंपेयर टू मनी इन द अर्ली स्टेजेस. मनी विल फॉलो, ट्रस्ट मी. जब मैंने काम करना शुरू किया था मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बिना सोचे समझे कभी एक एक्सपेंसिव डिज़ाइनर बैग ख़रीद पाऊँगी या फिर बिना सोचे समझे एक इंटरनेशनल वेकेशन ले पाऊँगी. बट 10 years down the line, it has happened for me and it will happen for you if you focus on the right skill sets as well. So that's all I wanted to share in this video. And कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालो. बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट and subscribe to the channel and I'm going to see you next time. Till then, bye.